हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेपाली कपल रिएक्शंस। नमस्ते, सलाम, आदाब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। नॉट आवर चैनल, इट्स योर चैनल। लाइक एक्चुअली ये आप लोगों का चैनल है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप लोग नहीं है तो हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वी डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर। ये सब आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं हैं जो हमें मूव कर रही है, हम लोगों को मोटिवेट कर रही है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से ही बता रहा हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें बोलना नहीं चाहिए, वो जरूर करेंगे देख के। तो ऐसे ही हंसी मजाक आप लोगों से थोड़ा थोड़ा कभी कभी करते हैं, इसको प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। ऐसा हमारा थोड़ा नेचर ही ऐसा है। तो एनीवेज, आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन बांग्लादेश के बारे में। ये बहुत पहले से रिक्वेस्ट आ रहा था, लेकिन दोस्तों इस वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा था। इसमें लिंक जो भी लिंक था वो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था। सो नेट से, इंटरनेट से कहीं डिलीट हो गया था हमारे। शायद हो सकता है यूएई में प्ले नहीं हो रहा हो। तो किसी ने मुझे ये लिंक भेजा है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग को ये लिंक मिला और हम लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड किया है और हम लोग इस पर रिएक्ट करेंगे। तो दोस्तों, विल सी 50 ईयर्स ऑफ राइजिंग ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि फिर बांग्लादेश का इकोनॉमी, बांग्लादेश की जो गवर्नेंस है वो बहुत ही राइज कर रही है। सो लेट्स सी कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसा उनका बांग्लादेशियों का सफ़र रहा अपने कंट्री में। तो हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो से। तो देखते हैं और बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए और एट द एंड हम लोग आपको अपना ऑनेस्ट रिएक्शंस एंड रिव्यूज़ ज़रूर देंगे। बंगाल वॉइस। From a war-torn, ravaged nation on the brink to launching its own satellite in under 50 years, Bangladesh is the story of a nation that has pulled itself up from the ground to shoot for the very stars. The fire sparked by the vision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, united a country of a diverse people and creed in 1971 and continues to shine the path towards the country's future. Okay. ये बांगा बंधु जो है, ये फादर ऑफ द नेशन है, राष्ट्रपिता। Today, under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has adopted a long-term plan to transform the country into a knowledge-based, middle-income economy by 2021. It also aspires to become a developed country by 2041, modeled after Bangabandhu's dream of a Sonar Bangla or Golden Bengal. Bangladesh has worked towards development from within, achieving, often ahead of time, all the Millennium Development Goals. Drawing inspiration from its success, the country is currently implementing the Sustainable Development Goals. 50% fewer people in Bangladesh live under the poverty line today than they did even 16 years ago. In the last 40 years, Bangladesh dramatically increased its food grain production, becoming the 4th largest producer of rice in the world and the 5th largest producer of fish. 2016 marks the second consecutive year that the World Economic Forum ranked Bangladesh first in gender equality amongst South Asian nations. Very good. The same year, adult literacy in the country rose to a 12-year high, while net 72% adult literacy, both over 98%. Life expectancy in Bangladesh is currently at 71.5 years, while infant and maternal mortality have both been significantly reduced. Since 2009, 14,000 community clinics have brought healthcare access door to door. Bangladesh has fulfilled all 3 criteria for graduation from LDC status this year and currently meets World Bank classification for middle income status. On the diplomatic front, it follows a policy of friendship to all and malice towards none. For 3 decades running, Bangladesh has been one of the biggest contributors to UN peacekeeping missions across the globe. From an agrarian economy in the 1970s, the Bangladeshi economy today is led by an export-oriented industrialization. The country is now the second largest exporter of ready-made garments in the world.
इंडस्ट्रियल में To keep up with the pace of the country's development, Bangladesh has embarked on constructing a number of mega infrastructural projects. Bangladesh's largest bridge, the Podda Bridge, is being built entirely with the country's own resources. It is projected to transform the lives of 30 million Bangladeshis through increased trade and connectivity. लॉन्गेस्ट ब्रिज है Bangladesh's first nuclear power plant in Rupur is set to power Nuclear 2.4 nuclear power million plant. homes by 2024. ओके Since 2003, more than 4 million solar home home systems system. have been installed nationwide. Bangladesh has Then the 30 highest million number of people. these solar home systems in the world. Since 2009, power generation has increased almost 4 times from under 5,000 megawatt to currently over 16,000 megawatt. The country's first deep-sea port, set to open in Pyra by 2030, is poised to considerably boost trade volume. Simultaneously, the Dhaka Metro Rail will ease congestion and pollution in the capital, carrying 60,000 passengers per hour. And with over 5,000 grassroots level union digital centers delivering 6 million e-services a month, public services have been brought to every doorstep in rural Bangladesh. To boost foreign and local investments in the ICT industry, the country is also setting up 12 high-tech IT parks in 12 separate बहुत districts. ज़्यादा तो इन लोगों ने aiming to इंडस्ट्री में ICT वो किया है ना export to $5 10 billion million by 2021 My and God. create 10 million jobs. Additionally, more than 100 special economic zones by 2030 seek to create a further 10 million jobs and churn out products and services worth $40 billion. In 2016, Bangladesh was the second fastest growing major economy in the world. It was the 6th year that GDP growth was greater than 6% and the momentum continued with 7.28% growth in 2017. Bangladesh has been named one of the next 11 countries having a high potential to become among the world's largest economies in the 21st century. A land of fertile soil and fertile possibilities. Bangladesh has leaped beyond what was once thought to be its potential. A country that is younger than 50 is about to enter the space age with the launch of its very first satellite, the Bangabandhu 1 satellite. Bangladesh's incredible growth and development is increasingly being acknowledged and lauded around the world, garnering praise from world leaders in many different forums. আসুন দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। Despite all that has been achieved, Bangladesh is not God. resting. Under the leadership of Sheikh Hasina, Bangladesh has Unbelievable. bold and ambitious plans to reach even greater heights. Guided by Bangabandhu's vision of a Sonar Bangla or Golden Bengal, the future is bright for this youthful and energetic nation reaching for the very stars. माय गॉड दोस्तों ये वीडियो के बारे में मैं क्या बताऊं मैं भी क्या या हम बताऊं लोग क्या बताएं इट वाज अ आई ओपनर डॉक्यूमेंट्री नॉट ओनली टू द सब कॉन्टिनेंट बट टू द एंटायर वर्ल्ड कि कितना बड़ा बहुत ही ज़्यादा कितने बड़े अचीवमेंट्स उन लोगों ने हासिल किया इन 50 सालों में। बांग्लादेश जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इंडिया और पाकिस्तान के बाद में आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद ये लोग रुके नहीं। अगर ये लोग रुक जाते तो शायद आज देश रुक जाता। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। अभी तो वन ऑफ द बिगेस्ट जो दिखाया गया ब्लूमबर्ग इज़ लाइक इंटरनेशनल फोरम जिसमें सारे वर्ल्ड के अपडेट्स आते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी जो उसने घोषणा किया, ये बांग्लादेश तो ही बहुत आता है। बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी। मुझे ये नहीं पता था कि बांग्लादेश में न्यूक्लियर प्लांट तक लग चुका है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। न्यूक्लियर बहुत ही प्लांट इज़ ज़्यादा। नॉट ओनली अबाउट ये हर खाली कोई कंट्री में नहीं हो सकता बम या मिसाइल के हाँ। लिए नहीं है। ये हम्म। इतना बड़ा प्लांट होता है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इससे बहुत सारे इससे ये ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में है तो रहता है। और सोलर पावर भी उनके पास बहुत है।
एजुकेशन में उन लोगों का ग्रोथ हो गया है, इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री में भी की तो इट्स अ ह्यूज रिवोल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा है मतलब हर जो कंट्री, इवन जैसे हम लोग नेपाल से बिलोंग करते हैं तो नेपाल इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो इन ऐसे कंट्रीज़ को सीखना चाहिए बांग्लादेश से कि कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, अपनी जीडीपी को मेंटेन किया, बढ़ाया और कंसिस्टेंट रखा और आगे कर रहे हैं। और आई एम रियली प्राउड कि बांग्लादेश दे हैव अ लेडी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी कोरोना के दौर में भी हम लोग देख लिया कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, ताइवान हो गया, जर्मनी हो गया, सारे लेडी लीडर्स जो टॉप लेवल पे हैं उन लोगों ने कोरोना को कंट्रोल करके दिखाया है। दैट मीन्स इट शोज़ कि लेडीज़ दे हैव विजन, एंड जब लेडीज़ लोग कुछ ठान लेती हैं तो वो करके दिखाती हैं दुनिया को। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मैडम शेख हसीना, शी हैज़ रियली डन अ ह्यूज रिफॉर्म्स इन द कंट्री। सो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि बांग्लादेश इतना तरक्की कर चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है। सो आई एम रियली अमेज्ड एंड रियली बहुत मुझे अच्छा लगा, खुशी हुआ ये जान के कि इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है और इतने सारे जॉब्स। हाँ, जो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते ही वहाँ जॉब क्रिएशन होगा, वो बहुत अच्छी बात है। जॉब क्रिएशन नहीं होने के कारण ही हम अपने देश में काम नहीं, हम अपने कंट्री में काम नहीं पाने के कारण ही हम लोगों को मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, विदेश आना पड़ता है। तो ये भी कम हो जाएगा और कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होने लगेगा। उनके पास सी है, उनके पास सब कुछ है, दे आर फुल विथ नेचर। और नेचर बेस्ड वीडियोस तो हम पहले भी देख चुके हैं, रिएक्ट कर चुके हैं। इतना बड़ा रिसोर्सेज है तो उनको कहीं जाने का और किसी से डिपेंड होने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश का एक कंपनी है टेक्स करके, जिसके गारमेंट्स मैं भी पर्सनली ख़रीदता हूँ। उनके जूते बहुत अच्छे हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैंने उनकी शर्ट्स बहुत ख़रीदी हैं खुद के लिए, अपने दोस्तों के लिए मैंने गिफ्ट किया है। और बांग्लादेश का एक एफएमसीजी में भी एक कंपनी है जो बहुत, इवन आप बोल रहे हैं मैंने यहाँ दुबई में भी बांग्लादेश के प्रोडक्ट बेचे हैं दुबई में, प्राण कंपनी का। एक्चुअली शी वाज अ सेल्स एसोसिएट इन प्राण ग्रुप ऑफ कंपनी फॉर फ्यू मंथ्स। कुछ समय हम उनको काम करना पड़ा था। तो प्राण के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मतलब ये है, अगर आप अपने देश के प्रोडक्ट को किसी यूएई या मिडिल ईस्ट के देशों के सुपरमार्केट्स के शेल्फ में जब पाते हो, मीन्स यू फील सो प्राउड कि मेरा कंट्री का सामान। जैसे हम लोग नेपाल का एक वाईवाई प्रोडक्ट है, अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वाईवाई को अब हम लोग जब भी जाते हैं और हम उसमें एक नूडल्स है, वाईवाई इज़ अ नूडल, सो हम लोग उसमें सेल्फ में देखते हैं तो वी फील प्राउड। ये इंडिकेशंस हैं डेवलपमेंट के कि क्या चीज़ हमारा कंट्री का एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट से ही रेमिटेंस आता है, पैसा आता है। सो इट वाज आई ओपनिंग वीडियो दोस्तों, बहुत ही हम लोग शुक्रगुजार हैं। आप लोगों के सजेशन बहुत मिले थे, लेकिन हम लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा था तो हम लोग इस पर रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे। लकीली किसी ने मुझे वीडियो भेजा, सो थैंक यू सो मच। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये राइजिंग ऑफ बांग्लादेश इन 50 ईयर्स का रिएक्शन अच्छा लगा हो। अगर हम लोग इसको ढंग से समझ पाएँ और हम लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया है तो इसको आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे हम लोगों को कि आप लोगों को कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें, देखें और हमको ऐसे ही प्यार देते रहें। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चलते हैं, अलविदा, बाय बाय।